ଇଗ୍ନୋର BHIC 132 ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 300 ରୁ 1206 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲାବସକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟସ୍। ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 10 ରେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ 300 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ। କାରଣ ଏମାନେ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପାଳ, ପ୍ରତିହାର, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଏମାନେ ଅନବରତ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧରତ ରହୁଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏମାନେ ଅତୀତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆଗରୁ, ରାଜବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆଗରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରଦ ରାଜ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ 750ରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ନେଇକିରି ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଥିରୁ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ହେଲା ଏମାନେ ସାତ୍ୟକୀ ଶାଖା ବା ଯଦୁବଂଶର ଅଟନ୍ତି। ଯଦୁବଂଶ କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଯଦୁବଂଶର ରାଜା। ଏମାନେ ଯଦୁବଂଶର ଗୋଟେ ଶାଖା ସାତ୍ୟକୀ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ବା ରାଜା ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ନୀଳକଣ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ଏମାନେ କନ୍ନଡ଼ ଅଟନ୍ତି ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ହଉଛି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ସେମାନେ ବିକଶିତ ହେଇଥିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ଏମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ଜାତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରତିହାର ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଅନବରତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିଜର ଏମିନାନ୍ସ ବା ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଥିଲେ। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ରୋମିଲା ଥାପର କହନ୍ତି ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଭାରତର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ୟାଙ୍କର ରାଜ୍ୟଟା ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲା, ଏକ ଚାରିପଟ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ୟାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ନହେଲେ ଏମାନେ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ନିଜର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଓ ଆରବ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳେ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ମାନଙ୍କା ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ସୋଲାପୁର ମାନେ ଆଧୁନିକ ସୋଲାପୁର, ଅତୀତରେ ଏହା ନାଁ ଥିଲା ମାଲଖେଡ ଠାରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ରାଜବଂଶର ଚିହ୍ନ ହେଲା ବା ରାଜବଂଶର ସଂକେତ ହେଲା ଗରୁଡ। ଏମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଜାରେ, ପତାକାରେ ଏବଂ ରାଜବଂଶ ଉପରେ ଗରୁଡଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଗରୁଡଙ୍କ ସଂକେତ ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯଦୁବଂଶର ଦାୟାଦ,
तेणु बोधे से गरुड़ को संकेत व्यवहार करते एक विशाल तालिका अच्छी राजा मानकर दंती बर्मन इंद्र 1 गोविंदराज काका 1 इंद्र 2 ये स्टडी मटेरियल मिल सब मन रखा संभव आम केवल किसी मुख्य राजा जो माने इंपोर्टेंट राजा जो मान समय किसी गुरुत्वपूर्ण कार्य होता आम परीक्षा दृष्टि से माने आम गुरुत्वपूर्ण से आलोचना करवा जड़े राजा हेले दंती दुर्गा ये हेले प्रधान नरपति या विषय आम सूचना पाऊ एलोरा शिलालिपि 742 एलोरा शिलालिपि विषय लिपिबद्ध होकर विषय मेंशनिंग अच्छी आउ गोटे शिलालिपि 754 मिली जो 754 शिलालिपि गोटा समग्ध इनस्क्रिप्शन बोली कहते एथे स्पष्ट हुए जे दांती दुर्ग चालुक्य मान को परास्त करी बादामी चालुक्य मान परास्त करी निम्नलिखित पदवी मान अधिकार करते कौन कौन से पदवी थिला पृथ्वी वल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर और परम भट्टारक ये पदवी को अनुशीलन कले आम जापर जे से तांकर प्राधान्य बा गुरुत्व बा तांकर टेरिटोरी साम्राज्य परिवर्तित करथिले तेणु दांती दुर्ग समय 4.5 लाख ग्राम तांका अधीन रे थिला 4.5 लाख गाँ रो शासन गाँ ऊपर से शासन करुथिले से एपरी साम्राज्य स्थापन करिगले गोटे ठोस शासन गोटे सुदृढ़ शासन प्रणयन करने आगु मृत्यु है से निसंतान थे मृत्यु पर देखागला गंडगोल किए सिंहासन में बसवे कृष्ण राजा प्रथम जे मातुल हेबे से समस्त को सप्रेस करी 756 रे सिंहासन आरोहण कले बर्तमान दंती दुर्ग कृष्णराज प्रथम दायित्व नेले राष्ट्रकूट साम्राज्यर एवं 772 बेलू जना पड़े जे मध्य प्रदेश अधीन को चली आसता आउ जड़े राजा गोविंद 2 जे परे परे सिंहासन आरोहण कले सेमती विशेष आखि दृश्या कार्यक्रम नहीं किंतु मेंशनिंग अच्छी बहुत राजा 300 वर्ष भीतर बहुत राजा आसी आम समस्त मन रखा आम पक्षे संभव नुह किंतु जो मैंने मुख्य विषय आलोचना करुचे आउ जने राजा आसिले 814 रु 878 अमोघ वर्षा ना हला अमोघ वर्षा ये शासन कले 814 ख्रीष्टाब्द रु 878 ख्रीष्टाब्द पर्यंत हाराहारी 68 वर्ष से शासन कले यांकर इते दीर्घकाल शासन भितर गुरुत्वपूर्ण विषय है से जो अत्यंत शांतिप्रिय राजा थे जमी आम प्रथम आलोचना करते राष्ट्रकूट मैंने सब युद्ध लिप्त थे समय युद्धर ये कमिगला युद्धर परिमाण कमी जाए से सबुदिन समस्त सब राजा भाया युद्धर लिप्त रोते कारण से जैन भक्त थे एवं जैन धर्म अवलंबी अहिंसा एवं शांति प्रिय थे प्रजा मान मंगल से बहुत अनुष्ठान कर अनेक यागयज्ञ हिंदू धर्म अनुसार हिंदू रीतिनीति अनुसार प्रजा मंगल से अनेक धर्म अनुष्ठान गठन कर समय छोट बड़ बहुत गुड़ाए आंदोलन विद्रोह होता
ଯାହାକୁ ସେ ଓଭରଲୁକ୍ କଲେ, ସେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନଙ୍କର ପତନ କେମିତି ହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନଙ୍କର ପତନ କେମିତି ହେଇଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଅମୋଘ ବର୍ଷା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜା ହେଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନାହିଁ, ବିଦ୍ରୋହକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲେ। ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନେ ଦମନ ହେଇନଥିଲେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରତିହାର ମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରମାଗତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଲେ। ସାମନ୍ତ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଶାସନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ସେମାନେ ଆଇଦର ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଲେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ହବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ରାଜାଙ୍କ ବଶତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅମୋଘ ବର୍ଷା ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହେଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ରୋହର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କଲା, ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା। ଅନବରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସୈନ୍ୟବଳ ଓ ଅର୍ଥକ୍ଷୟ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ରାଜବଂଶର ପତନ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁ, ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ସବୁ ରାଜବଂଶର ପତନ ପଛରେ କେତେ ଗୁଡାଏ କମନ କାରଣ ଥାଏ। ଯେମିତି ରାଜବଂଶର ବିଶାଳତା, ସେ ମୁଗଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜବଂଶର ବିଶାଳତା, ବଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ରହିବନି, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବଳ ପାଇବନି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ରାଜବଂଶ ଲୋପ ପାଇବ। ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ସୁଦକ୍ଷ ଶାସକ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନ ଆସିଲେ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଠିକ ଭାବେ ନ ଚଳେଇ ପାରିଲେ, ଏଇଟା ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବେ। ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ, ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଏ। ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଦେଶ ଭିତରେ ଯଦି ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜବଂଶ ଲୋପ ପାଏ। ଇଏ ହଉଛି କେତେ ଗୁଡାଏ କମନ କାରଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡେ। ସୋ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇ କେତେ ଗୁଡାଏ କମନ କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ତା ଭିତରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କଣ କଣ ଥିଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ତା ଛଡାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କାରଣ ହଉଛି ଆର୍ଥିକ ଅବନତି। ପଇସା ନଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ହତୋତ୍ସାହ ହେଇ ପଡିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଧୀରେ ଧୀରେ ପତନ ହବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ କାଳେ କନଫ୍ୟୁଜ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କଣ୍ଡେନ୍ସ କରିଦଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନଙ୍କର ପତନର କାରଣ ହେଲା ପ୍ରତିହାର ମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରମାଗତ ଯୁଦ୍ଧ, ସାମନ୍ତ ମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କଲେ, ଅମୋଘ ବର୍ଷରେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜା ଥିବାରୁ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଧର୍ମ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିକିରି ଟିକେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଫଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କରଦ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଯିଏ ଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ପରିଗଣିତ କଲେ। ଏଇନା ଆମେ ଆସିବା ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନଙ୍କର ଶାସନ। ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଶାସନ କିପରି ହଉଥିଲା, ଯେତେବେଳର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଭାଗକୁ, ଶାସନର ଶେଷ ଭାଗକୁ ବା ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ, 7.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ ଯେ 7.5 ଲକ୍ଷ, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 4.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ 7.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆୟତନ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆୟତନ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସାରିଥିଲା।
এই 7.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ସେମାନେ କିପରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଜା ଥିଲେ ଏ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତ ପାୱାର ଥିଲା। फाउंटेन ऑफ जस्टिस बोले आम इंग्लिश रे कहू। ताका हाथे सबु पावर थिला बा ईश्वर को परे सी होचंदी ईश्वर को प्रतिनिधि जे कि शासन करूथे। तो ताका ऊपर कहीं नहीं ताको चैलेंज करियो कहीं नहीं। तो राजा स्वेच्छाचारी हबार यथेष्ट संभावना थाई मध्य कई राजा थिले भारी प्रजावत्सल थिले जेंति आमे अमोघ वर्ष कथा पढ़िले। तेणु ताकर शासन होता केन्द्र राजा मान द्वारा ताकर समग्र साम्राज्य 7.5 लक्ष ग्राम को सेमाने राष्ट्र विभक्त करथिले। समग्र साम्राज्य को केते गुडा राष्ट्र विभक्त करा जायता। प्रत्येक राष्ट्र रे जणे लेखा राष्ट्रपति थिले। प्रत्येक राष्ट्र को पुणे केते गुडा विश्व विभक्त करा जायता एवं प्रत्येक विश्व रे जणे लेखा विश्वपति शासन दायित्व रे थिले। प्रत्येक विश्व को केते गुडा भुक्ति रे विभक्त करा जायतला। ये भुक्ति रो शासन दायित्व रे थिले राष्ट्र महातार बा विश्व महातार। ताहले जदि आमे एपुटु देखा केते गुडा ग्राम को नै कि गुडा भुक्ति गठित भुक्तिर शासन दायित्व थिले राष्ट्र महातार। केते गुडा भुक्ति कि नहीं गिरी गोटे विश्व गठित जहा दायित्व थिले विश्वपति। केते गुडा विश्व को नहीं गिरी राष्ट्र गठित जहा दायित्व थिले राष्ट्रपति। एई राष्ट्र मान को नहीं गिरी समग्र राष्ट्रपति मान को नहीं बा राष्ट्र को नहीं गिरी राष्ट्रकूट साम्राज्य गठित। ये जो राजकर्मचारी माने नियुक्त पाई साधारणतः से माने राजवंश लोक ता छड़ा जो माने दक्ष शासक दक्ष प्रजा जो मान को बाछिक दायित्व दि जाता से शासन करने जमी जमा आकार रे पारिश्रमिक दि जाउथला किबा दरमा आकार रे अर्थ आकार रे मध्य तांको पारिश्रमिक मिलुथला। ताले सेमाने एई परि भाबे तांकर पारिश्रमिक पाई शासन कार्य परिचालना करुथिले। करद राज्य सब स्वाधीन थिला। तांको अधीन जेते करद राज्य थिला से तांकर आभ्यंतरीण शासन रे हस्तक्षेप करुनथिले। लोकल राजा माने तांको निज निजर शासन परिचालना करुथिले किंतु केंद्र शासन को बा मुख्य शासनकर्ता को सेमाने कर आकार अर्थ भरणा करुथिले प्लस युद्ध समय सैन्य जोगाउथिले। अधिकांश समय यही करद राजा मान सहित केंद्र राजा मान वैवाहिक संपर्क गढ़ी उठुला। तेणु यही मान को नहीं राष्ट्रपति विश्वपति एवं करद राजा मान साहाय्य शासन परिचालित होता। जमी आम कहले सर्वनिम्न शासन यूनिट हूँ ग्राम। ग्राम मध्य स्वाधीन थिला। ग्राम रे जहा असुविधा सुविधा होता विभिन्न प्रकार न्यायिक विचार विभाग रो जो कार्यक्रम होता गाँव रे ही मीमांसित हो जाता। जदि बढ़ौला ताहले विभक्ति की जाऊला। सैन्य बाहिनी शासन रे गोटे विराट सैन्य सब युद्धरत रोते विशाल सैन्य बाहिनी गठन से करते। सैन्य बाहिनी रे घोड़सवार बाहिनी थिले, हस्ती बाहिनी थिले, पदातिक बाहिनी थिले। सेमानकर घोड़ा सब आरब रो आमदानी कराउथला। अरेबियन हॉर्स आसुथिले जोड़ा उच्चा उच्चा और शक्तिशाली घोड़ा। तेणु सेमानकर गोटे शक्तिशाली सैन्य बाहिनी थिला। ता छड़ा रे निज राजधानी की
एवं गुरुत्वपूर्ण अंचल को सैन्य छावनी की निरापद रखा से दुर्ग सब निर्माण कर समय विराट विशाल एवं सुदृढ़ दुर्ग मान सब निर्मित ये हूँ शासन विषय समग्र सूचना तापर आसवा आम समाज धर्म और साहित्य विषय आलोचना समाज सामाजिक स्थिति विषय आलोचना करने गले आम देखू जे जितेबाला राष्ट्रकूट मान शासन करने आसिले उत्तर भारतर एक छाप पूर्ण छाप पड़ सारी से दक्षिण भारत को कनफाइंड हो दक्षिण भारत जमी आम जानू दक्षिण भारत रोचे द्रविडियन परंपरा उत्तर भारत रोचे आर्यन परंपरा से भाषागत तारतम्य बहुल भाव परिलिखित हुए जदियो संस्कृत कमन लैंग्वेज थिला किंतु से लोकल आदिवासी द्रविड़ माने भाषा परंपरा संस्कृति चलनी उत्तर भारत संपूर्ण भिन्न था किंतु आम जो समय कथा आलोचना कर 1000 ख्रीष्टाब्द बेलू धीरे धीरे भितर समन्वय आसवा आरंभ कला एवं परस्पर सहित से धीरे धीरे उत्तर भारतर परंपरा को संस्कृति की ग्रहण करने आरंभ कर सारी केमती जना पड़ा कथा धर्म साहित्य संस्कृति एक कथा परिलिखित है से समय गोटे गोटे मजादार घटना घटुला जो उल्लेख करने उचित मन कर जो मान सहित युद्ध कला बेले जो राजा माने सब पराजित हो जाते से राजा मानकर मूर्ति बा प्रतिछवि मुखशाला मंदिर मुखशाला हो बा तोरण द्वार रे गेट वे रे छवि बा मूर्ति की स्थानित करा जो पराजित राजा मानकर मूर्ति ताहले से माने जार मूर्ति अच्छे विश्वास जो मैंने देखुले यही राजा बा ये सब पराजित होती आम राजा का ठार यहाँ गोटे असम्मानजनक बा गोटे आम तो कौन कह गोटे इनसल्टिंग बेपार तेणु से जदियो हिंसा परवर्त है किसी कर्म करू नथिले तथापि एमती साइकोलॉजिकली गोटे हारास करुले फल अधिकांश राज्य राजा जो मैंने परास्त होते से कहा द्वारपाल हो चित्र मूर्ति द्वारपाल हो एक कथा चाहून से ऑब्वियसली सुइसाइड करुले आत्महत्या करुले से कठोर दंड परिवर्ते मानसिक जंत्रणा देवाक माने विशेष विश्वास करुले समाज रे 4 प्रकार जाति से एविडेंट हो जाता 4 प्रकार जाति बहुल भाव देखा यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एत बड़क समय माने भारत में 1000 ख्रीष्टाब्द बेलू 4 जाति प्रच्छन्न भाव दृष्टिगोचर हवा लगे किंतु वस्तुत जाति सब कर्म अनुसार हवा कथा जी जो कर्म करे से जाति रे परिगणित कराए जड़े ब्राह्मण जदि युद्ध कला से क्षत्रिय पदवाच्य हवा उचित वैदिक जुगर ये परंपरा थिला किंतु एतबड़क समय गुप्त समय पर जन्म अनुसार जाति प्रथा को अग्राधिकार दिगला जी जो घर वंश जन्म है से जातिर एथरे अस्पृश्य मानकर स्थान देखादेला शूद्र मान परे आउ किछि लोक रहे अस्पृश्य कहला से हेले मोची बढ़ई बाउंस कारीगर केउट धोबा झाड़ूदार और चंडाल
ଏମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯଦିଓ ଏମାନେ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ, ଏମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସମାଜ ଚଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିନା ବଢେଇରେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାଉଁଶ କାରିଗର, କେଉଟ, ଧୋବା, ଝାଡୁଦାର ଇତ୍ୟାଦି ସେତେବେଳେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା? ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହଉଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ପରିଲିଖିତ ହେଲା ଯେ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକି? ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କି ବୈଶ୍ୟ ଏମାନେ ଯେହେତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ଚାଷ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ରହିଲେ? ଶୂଦ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଏଇ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାଷ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲା। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଶୂଦ୍ର, ଶୂଦ୍ରରୁ ବୈଶ୍ୟ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଧନୀ ବି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚାଷବାସ କରି ସେମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିନେଲେ। ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା। ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମହିଳା ମାନେ ସେ ସମୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରାଜଧର୍ମ କିଛି ନଥିଲା। ଯୋଉ ରାଜା ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ସେଇ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ସମାନ, ଇଭେନ୍ ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ନଜିର ଆମକୁ ମିଳେ। ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଭାରତରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଆରବୀୟବାସୀ ଭାରତରେ ରହି ଏଠି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସେତେବେଳେ କାଁ ଭାଁ କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ହିନ୍ଦୁ, ବୈଷ୍ଣବ, ଶାକ୍ତ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେଇଥିଲା। କନ୍ନଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ବହୁଳ ଭାବେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦଉଥିଲେ ମାନେ। ଶିକ୍ଷାରେ ଯାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହଉଥିଲା ସେ ହଉଛି ବ୍ୟାକରଣ, ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଗଣିତ, ବ୍ୟାକରଣର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ को केमती तांकर उत्पत्ति, तांकर सामाजिक शासन, सामाजिक परिस्थिति, तांकर साहित्य इत्यादि आमे एना दशम यूनिट सारी एकादश यूनिट रे पदार्पण कले। ये जो एकादश यूनिट टी हम भारत इतिहास पर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अध्याय। तार कारण होचे गोटे जुगर अयमारंभ एठू हेइछ। आमे भारत इतिहास को ब्रॉडली तीन भाग में विभक्त कर प्राचीन इतिहास, मध्ययुगीय इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। आमे आम बुझा आमको ठीक भाव भाग करने इतिहास विस्तृति की आमे ये दशम यूनिट सुधा भारतर प्राचीन इतिहास को मोटामोटी अध्ययन कले। यही आमर आरंभ हल मध्ययुगीय इतिहास, प्राक मध्ययुगीय इतिहास
जोटा आरब इन्वेशन ऑफ सिंध आरबीय मानकर भारत आक्रमण ठारू आरंभ होइछि या पर सुल्तानेट पीरियड मुसलमान पीरियड इस्लाम पीरियड मुगल पीरियड ये सब आसी जीवो ताहले एई अध्यायटी विशेष गुरुत्वपूर्ण एइथि पई जे आरबीय मानकर आगमन भारत को हेइतला केबे हेइतला 712 ख्रीष्टाब्द तेणु 712 ख्रीष्टाब्द ठारू भारतर रूपरेख संपूर्ण बदली गला आ यार इंपोर्टेंस कौन आमे जेतबळे अध्याय सारिबा सेतबळे किछि किछि जानि सारथिबा आ किछि किछि आमे विश्लेषण करिकि जानिबा जे ये अध्यायटा भारतीय इतिहास पई काहेकि गुरुत्वपूर्ण सबुठु मजादार कथा होची ऐतिहासिक माने कहନ୍ତି आरब कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध अ ट्रिप विदाउट रिजल्ट जय कले किंतु किछि फलाफल नाही सेमति देखिया गले किछि फलाफल नथिला किंतु विश्लेषण कले जणा पड़े जे यार फलाफल अति गुरुत्वपूर्ण अरब आरबीय मानकर सिंधु आक्रमण बा भारत आक्रमण इतिहास अनेक पुरातन बहुत आगुरु आरबीय माने भारत सहित व्यावसायिक संपर्क जड़ित से माने आसंती कास्पियन सागर लोहित सागर हेकिरी भारतर पश्चिम उपकूलवर्ती अंचल गुजरात अंचल आसिक पहुंचते से व्यवसाय भारत सहित चली ये बहुत पुराना कथा किंतु आमर विषय वस्तु होची से आक्रमण व्यवसाय करुले केतବେଳେ आसुले सेठू आनिथिबा जिनस पत्र एठी दउथले हमर एठू मसला पत्र इत्यादि हीरा लीला भक्ति मानिक सने नेकरी जाउथले किंतु आक्रमण हैला विधिवत भाव 712 रे मोहम्मद बिन कासिम को द्वारा आक्रमण आगु आम टिके आलोचना करबा भारतर राजनैतिक अवस्था कौन था कौन पाई ताकू सुविधा है जेतबळे मुसलमान माने भारत रे प्रथम थर पाई पदार्पण कले सेतबळे भारत राजनैतिक अवस्था एंती थिला जे भारत रे कौन केंद्र शासित बृहत्तर शासन चली नथिला क्षुद्र क्षुद्र राज्य सब स्वाधीन हो जाइथिले सेमाने परस्पर जे जहाकू 14 पा परस्पर सहित युद्ध करी निजर बहादुरी देखा सब चेष्टित थे ये सीमा माड़ी बसुला सी युद्ध करुला परस्पर सहित अनबर युद्धरत थे केन्द्र में सुदृढ़ शासन नाला छोटिया मोटिया राज्य सब निज निज भर युद्ध करुले ये सुजोग जुटेदेला वैदेशिक मान भारत में प्रवेश करने जमती भारत रे अवस्था थिला आरब रे मध्य किछ भल अवस्था नथिला आरब रे गोटे बड़ कथा हेतला सप्तम ख्रीष्टाब्द बेलू सप्तदश 7th सेंचुरी बेलू सप्तदश ख्रीष्टाब्द बेलू सप्तम शताब्दी बेलू सॉरी सप्तम शताब्दी बेलू इस्लाम धर्म प्रवर्तन हो इस्लाम धर्मावलंबी माने तांकर धर्म को एते बेसी गुरुत्व दबा आरंभ कले जे एनिक से माने धर्म प्रचार करिया पई तांकर सब कार्य भितर जीवन जीविका भितर प्रथम अग्राधिकार दिया गला धर्म प्रचार इस्लाम धर्म जदियो कुरान याकू एते गुरुत्व देई नाही किंतु किसी कट्टरपंथी याकू अत्यधिक गुरुत्वपूर्ण मन करी मोहम्मद के प्रति तांकर आनुगत्य प्रकाश कले जड़े मोहम्मद बेली जड़े राजा हेले मक्कारे सी कौन कले आखपाख अंचल सब राज्य को अधिकार करी एक सुविस्तीर्ण साम्राज्य गठन कले एवं से साम्राज्य को से साम्राज्य रे सेटा गोटे इस्लामिक साम्राज्य बा इस्लाम धर्म जेते आदिवासी रहिले
मुख्यतः आदिम अधिवासी माने से अंचल बास करते जो मान को एकाठी करागला जय करके गोटे से साम्राज्य स्थापन करते ताकू से सबू थिले मुसलमान तेले आरब रे मुसलमान अध्युषित अंचल थिला एमान धीरे धीरे व्यवसाय करथिले कि चाष कर संभावना अछि व्यवसाय थिला तांकर मूल रोजगार पंथा से माने भारत को जो आसंती किए केतबळे भारत विषय सब तथ्य नहीं आरब रे प्रकाश कर भारत को से सोने की चिड़िया बोली कह भारत में प्रचुर धन संपत्ति थी अमाप धन संपत्ति थिला ये लुचिकी रहून जो आरबीय मान से आसुले भारत संपत्ति धन संपत्ति देखी से अभिभूत हो जाते से जाकि कहती भारत गोटे सोनार देश सोने की चिड़िया बोली से अवहित करुले तेणु मन भर कौटी ना कौटी थिला जे जदि भारत आम अधीन को आसे ताहले आमे अपर्याप्त संपत्तिर मालिक हो पार आउ गोटे बड़ कथा है जिहाद जिहाद माने धर्म प्रचार परवर्ती काल कहला धर्म युद्ध सेमती कौन आमर शास्त्र नहीं जे आवश्यक स्थले धर्म प्रचार पर युद्ध करा जाय पारे किंतु सेमाने जिहाद को एमती इंटरप्रेट कले युद्ध द्वारा ही युद्ध माध्यम रे ही धर्म प्रचार करा जाय पारे तेणु जदि सेमाने कौन सी देश आक्रमण करुचंती ताकू सेमाने जिहाद ना देले माने अल्लाह को ना रे ईश्वर को ना रे सेमाने आक्रमण करुचंती बोली विश्वास कले तले आमे वर्तमान आलोचना करूचे केउ केउ कारणरू आरबीय माने भारत आक्रमण करते प्रथम कारण होची भारत संपत्ति सोने की चिड़िया द्वितीय कारण होची इस्लाम धर्मर प्रचार जो से संकल्पबद्ध थे तृतीय कारण हूँ संप्रसारण राज्य देशर काया वृद्धि करने भारत आक्रमण करने भारत को निज अख्तियार रखा उद्देश्य थिला व्यवसाय वाणिज्यर उन्नति करने भारत कॉलोनी स्थापन कर उपनिवेश स्थापन कर ओवरऑल आर्थिक अभिलिप्सा आउ गोटे बड़ कथा हूँ परिवार संप्रसारण जोटा को सेमानकर गोटे विचित्र इंटेंशन थिला जे जदि जी भी मुसलमान मान औरसु जन्म है से ऑटोमेटिकली मुस्लिम हो गला फल मुसलमान धर्म रो काया वृद्धि पाइला तेणु बहु विवाह से विश्वास करते भारत जदि किसी रमणी युवती नहीं जाकि हारत में रखिपारे ताहले समस्त औरसु जिते संतान जात है समस्ते मुसलमान जन्मर मुसलमान से समय बागदाद एवं बड़ बड़ अंचल राजा मानकर हारेम कहले अंतबस माने जोटा रानी हंसपुर रानी हंसपुर रे को राजा केते रानी अच्छी से नहीं कंपटीशन जाऊला कहार 200 कहार 300 कहार 400 सहस्राधिक रानी से माने रखी पारुଥିଲେ और जिते संतान होते से ऑटोमेटिकली मुसलमान जन्म होते मुसलमान बेलिकी कह जाऊ तेणु आउ थे आम ये करुचे कंडेन्स करुचे प्रथम हूँ जिहाद धर्म प्रचार पर से भारत आक्रमण करते सोने की चिड़िया संपत्ति राज्य संप्रसारण आर्थिक अभिलिषा एवं युवती मानकर युवती संग्रह करेंगे से भारत परिवार वृद्धि यही कारण आरबीय माने भारत आक्रमण करते किंतु यार गोटे इमिडिएट कारण थिला
इमिडिएट कारण कौन जे गोटे जहाज थरे किसी बणिक आसी आरबीय बणिक भारत को श्रीलंका से माने आरब को फेरते से जहाज किसी कौन नहीं जाऊँ दैट इज कंट्रोवर्शियल आम आलोचना कर किंतु जहाजटा जाऊँ से जहाजटा एकाधिक क्रमे समुद्र दिन दिन धरी यात्रा कर मझे मझे पोताश्रय मानक लंगर पकड़ पड़ो कि ना भी पानीय जल से जोगाड़ करेंगे पानीय जल जहाज उठेले जाकि आग को यात्रा करेंगे तेणु जीवा पथरे श्रीलंका आरब फेरिया पथरे सिंध उपकूल किसी जलदस्यु से जहाज को लुंठन कर से जहाज को लुंठन जहाँ थिला सब नहीं गले बाड़े विदा करते से कौन सब जीवन नहीं जा पहुंचले आरब रे एवं ताका गुहारी अल हजाज राजा थिला अल हजाज ताका आगे ताका दुख बयान कले आमठू छड़े निगला आमको सेठू अल हजाज से खबर पठेले आरब सिंध रे से राजा थिले दाहिर आरोर थिला तांकर राजधानी ताका पाखु एक संवाद प्रेरण कले जे मोर क्षतिपूरण आपण देबे राजा ऑब्वियसली कहले राजपूत राजा कहले रे चोर तो चोरी कले मुझे क्षतिपूरण कहीं जहां जदि कर चोर को धर तेणु सी गोटे सैन्य बाहिनी पठेले जो सैन्य बाहिनी 711 आसी परास्त होकर फेरीगले अल प्रथम अटेम्प्ट परास्त हेले फेरीगले फेरीगा द्वितीय अटेम्प्ट से ने 712 पूर्व आम टे से घटना को आसवा ताकू गोटे कहानी आकार में मु वर्णना करने चेष्टा कर सिलेबस भितर कहानी आकार घटना नहीं तथापि कहानी आकार मन रखा सुविधा है मनकर मुझे उपस्थापन करी किंतु हमको सोर्स को जीवा पड़ो ये सब विषय आम जानिले केमती अली खुफी नामक जड़े लेखक गोटे चाचानामा लिखते चाचानामार अर्थ हूँ चाचा कहानी अली खुफी जो चाचानामा लिखी से ये आरब आक्रमण कथा उल्लेखित अच्छे जदियो अल मदानी अल बालाधुरी एमाने आरब ऐतिहासिक किंतु आरब आक्रमण कथा आरबीय मानक सिंधु आक्रमण कथा विशेष भाव उल्लेखित करना किंतु अली खुफी 1226 ख्रीष्टाब्द चाचानामा नामक ग्रंथ जो पुस्तक से रचना करते आरबीय मानकर सिंधु आक्रमण विषय आलोचना करते मिर्जा कालिज बेग 1900 ख्रीष्टाब्द मिर्जा कालिज बेग 1900 ख्रीष्टाब्द इंग्रेजी रे अनुवाद करी लोकलोचन को आनिले आमे आरबीय मानकर सिंधु आक्रमण कथा विषय जानिया को पाऊ एना आसवा घटनाक्रम कौन है आरबीय मानक सिंधु आक्रमण इमिडिएटली कारण होची जो सिंहल जो जहाज जो जाऊला नहीं धन संपत्ति नुह एक्चुअली या कंट्रोवर्सी अच्छी किए कहते ऐतिहासिक कहते सिंहल से युवती मान चारण करते आरब आरबीय माने क्लेम करते जे सिंहल राजा मृत्यु पर पिला अनाथ हो गले तो थैथान करने आरब नहीं जाऊे कौन सिंहल जगह ना थैथान हाँपाई पठे तेणु से जहा हो आरबीय मान मत हो आम आणुथु थैथान करने गोटे धर्म कार्य करने किंतु डकायत मैंने आमठू छड़े नहीं गले ये कथा से अल हजाज को आगे फेरा दे अल हजाज प्रथम पर्यायर सैन्य बाहिनी प्रेरण कले जहाँ दाहिर सिंधु उपकूल परास्त कर फल से फेरीगले यहीना
अल हजाज भीषण भाव हिंसा परायण हो गले। ये आउ टिके मेंशन करिया पड़े जे अल हजाज होचंती खलीफा का अधीनस्थ परद राज्य। खलीफा किए बागदाद रो जे शासक ताको खलीफा कहले। जेकोसी व्यक्ति जे बागदाद सिंहासन रे अभिषिक्त हुए ताको ऑटोमेटिकली से खलीफा है। खलीफार गुरुत्व कौन इंपोर्टेंस होची खलीफार खलीफा होची समग्र इस्लाम जगतर धर्मगुरु। जमती क्रिश्चियन मानकर धर्मगुरु हेले पोप, हिंदू मानक धर्मगुरु हेले शंकराचार्य, सेमती इस्लाम मानक मुसलमान मानक धर्मगुरु हेले खलीफा। सर्वोच्च धर्म कर्ता सी ये किए हेबे जे बागदाद सिंहासन रे जे अधिकार कला जे अधिष्ठित कला से ऑटोमेटिकली खलीफा है गला। ताले खलीफा को पृथ्वीर समस्त मुसलमान माने सम्मान देवा बाध्य अटंती। अच्छा अल हजाज खलीफा को फेरा देले मत सहयोग करंतु आमर सम्मान हानि हला भारत रे बा सिंध उपकूल रे आमको एमती प्रसारित कले आमको एमती छड़ाई छड़ाई से अनुमति देले। अल हजाज तांकर पुतुरा मोहम्मद बिन कासिम को गोटे सैन्य बाहिनी साहाय्य गोटे सैन्य बाहिनी जोगे भारत आक्रमण करने सिंधु आक्रमण करने प्रेरणा कले। मोहम्मद बिन कासिम आसी सिंध में पहुंचले 712 ख्रीष्टाब्द एवं से आक्रमण कले। ये गोटे असुविधा है कौन जेहेतु प्रथम आक्रमण को जाहिर जे आरोर राजा थिले से प्रतिहत करथिले ताको परास्त करथिले से अंडर एस्टिमेट कले माने थरे हरि साथी ए कोन करियो किंतु से मोहम्मद बिन कासिम कर बल को कम आकलन करबा द्वारा मोहम्मद बिन कासिम सहजरे प्रवेश करिगले सिंध भितर एवं प्रवेश करबा संगे संगे कोन कले प्रथम जो मान को धरिले जो मान को तांका से बंदी कले तांका आगे जोड़ी ऑप्शन रखिले आइदर इस्लाम और मृत्यु। आइदर मुसलमान है ना मृत्यु को वर्ण कर ता माने जो माने तांका द्वारा बंदी हेले से माने कौन करथे बाध्य कि इस्लाम धर्म ग्रहण करते कहीं मरिया को भल पाती नहीं तेणु से कथा शुणु न से मृत्युवरण कर मोहम्मद बिन कासिम पशिके आग लोक मान हत्या पोक माछ भाया मारी दे गले बिना द्विधारे आ जो मैंने मुसलमान हो गले से क्षमा दिगला फल ये युद्ध लोक मान छत्रभंग देले सैन्य जाहिर परास्त हेले मृत्युवरण कले आरोप अधीन को चलीगला। मोहम्मद बिन कासिम कौन कले समग्र सिंधु को निज कब्जा करथिले एवं जो राजपूत रमणी माने थिले समान जहर व्रत पालन करके आत्महत्या कले। किंतु दाहिनकर दुई कन्या ना नहीं कि टिके कंट्रोवर्सी अच्छी सूर्य देवी और पालमार देवी ये दी दाहिनकर दुई कन्या एमान को मोहम्मद बिन कासिम बंदी करी सांगेरे नहीं गले खलीफा को उपहार देवे। ये गोटे बड़ मजादार घटना होती जितेबाला से नहीं गले कन्या दी जन नहीं खलीफा को प्रेजेंट कले जे आपण भारत रू आनी राजकन्या आपण हारेम रे स्थानित करने से कन्या दी जन बड़ टैक्टफुली गोटे कथा खलीफा को जनइले जे आपण आगे ये अंगठा पत्र पहुंच आमको मोहम्मद बिन कासिम आगु व्यवहार कर आमको यूज करके आगे परिवेषण कर ये ठीक लोग बागदाद
ଖଲିଫା ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଏମିତି ମାନେ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ପରିବେଷଣ କରାଗଲା ସିଏ ଏକଦମ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ଝିଅ ଦି ଜଣ ଅସଲ କଥା ପ୍ରକଟ କଲେ ଇଏ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଆମର ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଜହର ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ସେଇ ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଛ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯାହାର ଆମେ ବଦଲା ନେଲୁ। ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେ ଯେହେତୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବି ସେମାନେ ବି ଜହର ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତେ ନିଜ ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୟନୀୟ ଅନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ମତ ଅଛି ଫତୁଲ ଉଲ୍ ବୁଲଦାର ଇଏ କହନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଖଲିଫା ଥିଲେ ସୁଲେମାନ। ତାଙ୍କର ଅଲ ହଜାଜଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପଡୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଅଲ ହଜାଜଙ୍କର ପୁତୁରା ହେଇଥିବାରୁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ଆମେ ଦିଟାକ ମତ ଲେଖିପାରିବା। ଗୋଟେ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ଏବଂ ପାଲମାର ଦେବୀଙ୍କର ଉକ୍ତି ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଥା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ବି କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ। यार फलाफल कौन है ये जो अरब आक्रमण फलाफल कौन है जमी आम कही मूलर विदाउट रिजल्ट यहाँ गोटे जय है कि फल है किंतु यार गोटे सुदूर प्रसारी फलाफल रहा कौन रहा सीमा वृद्धि हो ना कारण मोहम्मद बिन कासिम जी जय करते सी तो मरीगले हत्या करागला। तेणु भारत को सेमाने जय कले सिंधु को जय कले किंतु शासन प्रतिष्ठा करि पारले नाही। किंतु कौन करिगले गुड़ाए मुसलमान तैयारी कर दे गले कारण जो मानक सेमाने बंदी कले ताका आगे ऑप्शन रखिदेले मुसलमान हो ना मृत्यु। तेणु जो माने मुसलमान हो गले मृत्यु भय से परवर्ती समय चाहिए पुणी निज धर्म को फेरी आसवाई आमर ब्राह्मण धर्म से ग्रहण कला ना। तेणु बाध्य गोटे मुस्लिम कम्युनिटी सृष्टि होगा। यहाँ हूँ गोटे बड़ फलाफल ये आरबीय इन्वेंशन। आरबीय माने भारत में आक्रमण कर मोहम्मद को बाणी प्रचार करी जो मुसलमान तैयारी करते नुह डरे तरबारी मुनरे जीवन भय देखी किसी मुसलमान सृष्टि कर दे गले जे परवर्ती काल में आम गोटे मुंड बथार कारण हो गला। आ गोटे अन्य पक्ष पॉजिटिव साइड लक्ष्य करवा जे जदि आमे इम्पार्शियली चिंता करवा ताहले जो मुसलमान माने भारत में अच्छा से माने किए जो माने आरब इन्वेशन जानी ना कथा अलग जो माने इतिहास छात्र आज विवरणी पढ़िले से माने अंतत पक्ष कहीपर ये जो मुसलमान माने ये माने आमर पूर्वपुरुष जीवन भर मुसलमान हो गले किंतु आमे ही जाई पुनर्बार आम धर्म रे पुणी सामिल कलु ना फल गोटे कम्युनिटी सृष्टि होगला। तार सुदूर प्रसारी प्रभाव कौन पड़ा पाकिस्तान पाकिस्तान तैयारी हबार मूल कारण हूँ सिंधु सिंधु आक्रमण रे जो आमरी पूर्वपुरुष हिंदू मान जबरदस्ती मुसलमान करदे आम जो पुणी पड़े नहीं था आज पाकिस्तान गठन हो ना क्या मुसलमान संप्रदाय वृद्धि पाई न था। तो जहा हो यार इमिडिएट फलाफल हूँ जे किसी फलाफल नाला कहले अत्युक्ति हम ना कि परवर्ती काल
पाकिस्तान गठन हो गला आ जहार परिणाम आमे आज मध्य भोग करुचे। आउ ता छड़ारे केते गुडे कर्म माने आउ किछि प्रभाव पड़ता जेमती 15टी संस्कृत ग्रंथ को आरब भाषा रे अनुवाद करा जायता। संस्कृत ग्रंथ रे बहुत उपादेय जिनस थिला जोटा के अरबीय माने निज भाषा रे अनुवाद करी तांको से माने ताको प्रोटेक्ट करते बा ताको भाषा रे सेतोळे गोटे कल्चरल इंटरेक्शन हेता। पॉलिटिकल इंटरेक्शन हले मध्य गोटे सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतला। आमर संस्कृत साहित्य को बा संस्कृत रे लिखित सब ग्रंथ जो थे बहुपादेय जिनस थिला से ताको अरबी भाषा रे अनुवाद कर लेता। ता भीतर मुख्य होची चरक एवं सुश्रुत चिकित्सा शास्त्र। चरक सुश्रुत हेले सुश्रुत हेले आमर आदि चिकित्सक आमर आदिम चिकित्सक भेषज चिकित्सा बा आयुर्वेद उपर तांकर अगाध्य पांडित्य थिला। चरक संहिता से रचना करथिले जो थे विभिन्न रोग पाई सब औषधर वर्णना रही याकू सब से अरबीय भाषा रे अनुदूत कर गले। ता छड़ा भारत चिकित्सक मानक से आरंभ नवा आरंभ कले कारण से चिकित्सा शास्त्र चिकित्सक नथिले बा चिकित्सा बा मेडिकल एड शून्य थिला। भारत रे थिबा आयुर्वेदिक डाक्तर मानक बा चिकित्सक मानक से माने एठु नै जाउथिले सेठी सम्मान सहित सेठी तांको अवस्थापित करा जायतला। से माने सेठी चिकित्सार प्रचार प्रसार करथिले। ता छड़ा रे एगला चिकित्सा विज्ञान संस्कृत एवं ज्योतिष एवं हस्तरेखा। ज्योतिष शास्त्र रे भारत निपुण थिला तेणु ज्योतिष शास्त्र बा ज्योतिषी गोटे वैज्ञानिक तथ्य एक से उपलब्धि करी ताको निज भाषा रे अरबी भाषा रे अनुवाद करी सेठी प्रचार प्रसार करते। हस्तरेखा पामिस्ट्री हाथ देखी भविष्य गणना करवा अरबीय माने शिखी गले। भारतीय संगीतर प्रभाव पड़ता। भारतर संगीत सारा पृथ्वी रे विख्यात तेणु यार प्रभाव पड़ता एवं सेमानकर संगीतर प्रभाव भारत रे देखिया पड़े। गजल सॉरी अंकर कविता साहित्य रो प्रभाव गजल आउ ठुमरी ये सब धीरे धीरे भारतीय संगीत रे स्थानित हवा कवाली ये सब भारतीय संगीत रे स्थानित हवा लगिला। भारतीय मानक द्वारा ये विशेष भावे आदृत हैला। फल आमे कहिबा ठीक हवा नाही जे आरबीय माने भारत जय करथिले मध्य किछि प्रभाव पड़ी नथिला किंतु ये एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय कारण ये अध्याय रे भारतीय माने भारत भितर मुसलमान संप्रदाय सृष्टि होता एवं तार परिणाम होची पाकिस्तान गठन जहाँ आज तारीख रे मध्य भारत पाए एक मुंड बथार कारण होती जार जेनेसिस एठी अरब इन्वेशन सिंध अरबीय मानक सिंधु आक्रमण कथा विचार कले आमे एथरो ए विषय निष्कर्ष उपनीत हो पार। आज पाठ्यक्रम ये आमे सारुचु काली आसंता अध्याय आमे अलग विषय पढ़ा। आज धन्यवाद नमस्कार।